Hello dear students, we are discussing chapter 7 class 9th Diversity in Living Organisms जीवों में विविधता. We know that kingdom Animalia is divided into two groups, non-chordata and chordata, on the basis of presence or absence of notochord. In non-chordata, from phylum Porifera to Echinodermata, notochord is absent, and in chordata, from Pisces to mammals, notochord is present. Now the question arises, what is notochord? So, notochord is a long rod-like support structure run along dorsal side of the organism. यह लंबी छड़नुमा संरचना होती है जो जंतु के पृष्ठीय भाग में होती है. Now what is dorsal means? Every chordate has two sides. One is upper side and lower side. Upper side is called dorsal side and the lower is ventral side. So dorsal means पृष्ठीय भाग, पीठ की तरफ वाला हिस्सा, और lower ventral is पेट की तरफ वाला हिस्सा, उदरीय हिस्सा. All chordates have following features. Non-chordates के लक्षण. They possess notochord. इनमें notochord पाई जाती है. They have dorsal nerve cord. इनमें पृष्ठीय तंत्रिका कॉर्ड पाई जाती है. All chordates are bilaterally symmetrical. इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है. All are triploblastic. सभी त्रिकोरिक होते हैं. Means they all are developed from three germinal layers. They have paired of gills and lungs for respiration. इनमें श्वसन के लिए क्लोम तथा फेफड़े होते हैं. All chordates are coelomates. सभी chordate में देगुआ पाई जाती है. Now the phylum Chordata is divided into two subphylums, Protochordata and Vertebrata, on the basis of presence and absence of vertebral column. मेरुदंड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में विभाजित किया गया है. नाउ प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटोकॉर्डेटा वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटोस which means first and chorde which means string. So they termed as the first form chordates. Characteristics of protochordata. प्रोटोकॉर्डेटा के लक्षण. नंबर 1, ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स आर मेरीन. सभी प्रोटोकॉर्डेट समुद्री आवास में रहते हैं. दे आर स्मॉल साइज्ड एनिमल्स. ये छोटे आकार के जंतु होते हैं. दे डू नॉट पोजेस ब्रेन, क्रेनियम, जॉज एंड वर्टिब्रल कॉलम्स एंड अपेंडेजेस. इनमें मस्तिष्क, कपाल, जबड़े, मेरुदंड के खंड और उपांग नहीं पाए जाते हैं. Some chordates like character like dorsal hollow nerve cord, gill slits and postanal tails are present. इनमें chordate की तरह लक्षण जैसे पृष्ठ भाग में नोटोकॉर्ड, तंत्रिका कॉर्ड, क्लोम और पूंछ पाई जाती है. They are triploblastic and bilaterally symmetrical. ये त्रिकोरिक तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं. अर्थात ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स दे डेवलप फ्रॉम three germinal layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Bilaterally symmetrical means both sides are equally divided. Enterocoelom and organ system level organization is present. आंतरिक देह गुहा और अंग तंत्र व्यवस्था पाई जाती है. इनके मुख्य उदाहरण है बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फिऑक्सिस etc. Now the subphylum Vertebrata. We know that all chordates have notochord at some stage of their life cycle. Chordate वह होते हैं जिनके जीवन चक्र में notochord पाई जाती है. With the process of development, the notochord develop into stiff structure called vertebral columns and it is called backbone. विकास की प्रक्रिया में नोटोकॉर्ड सख्त क्षेरुकुओं में परिवर्तित हो गई जिसे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं. So all chordates that have vertebral columns are grouped under
Subphylum Vertebrata. These animals are also called vertebrates. Now, vertebrates are divided into 5 classes. Vertebrate को हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं. नंबर 1 पाइसिस मत्स्य वर्ग. नंबर 2 एम्फीबिया जलचर स्थलचर वर्ग. नंबर 3 रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग. और नंबर 4 एब्स पक्षी वर्ग. एंड नंबर 5 मैमल्स स्तनपायी वर्ग. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोस्केलेटन endoskeleton and their breathing systems. Number 1 on the basis of exoskeleton. Pisces body is covered with shiny scales and plates. मत्स्य वर्ग के शरीर चमकीले शल्क और प्लेटों से ढके होते हैं. In amphibia moist skin is present. जलचर स्थलचर में श्लेष्म त्वचा होती है. In reptiles dry scales are present on their body. सरीसृप में शुष्क शल्क उनके शरीर में पाए जाते हैं. इन एव्स बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स. पक्षी वर्ग में शरीर परों से ढका होता है. इन मैमल्स हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन दियर स्किन. स्तनपायी वर्ग में त्वचा पर बाल पाए जाते हैं. सेकंड है एंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल. इन पाइसिस स्केलेटन इज मेड फ्रॉम कार्टिलेज एंड बोन्स. मीन्स some fishes are made from cartilage and some are from bones. मत्स्य वर्ग में मछलियाँ उपास्थि और अस्थि से बनी होती हैं. कुछ उपास्थि से और कुछ अस्थि से बनी होती हैं. Whereas amphibia, reptilia, apes and mammals skeleton is made from bones. थर्ड है ब्रीदिंग सिस्टम श्वसन प्रक्रिया. All Pisces respire through gills. सभी मत्स्य वर्ग के प्राणी क्लोमों से श्वसन करते हैं. एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू स्किन एंड लंग्स. जलचर स्थलचर त्वचा और फेफड़ों से श्वसन करते हैं. वेयरएज रेप्टाइल्स एप्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स. सरीसृप पक्षी और स्तनपायी वर्ग फेफड़ों से श्वसन करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद क्लास पाइसिस मत्स्य वर्ग. पाइसिस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स फिश. It includes all fishes. General characteristics of Pisces. मत्स्य वर्ग के मुख्य लक्षण. They are exclusively aquatic animals present in both marine as well as freshwater. ये संपूर्ण जलीय जंतु हैं. ये समुद्री व मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं. Fishes have streamlined body covered with scales and plates. इनका शरीर धारा रेखीय और त्वचा शल्कों व प्लेटों से ढकी होती है. गिल्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन. दे ऑब्टेन वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन. श्वसन क्रिया के लिए क्लोम उपस्थित होते हैं. ये जल में विलीन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं. मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड फिन्स आर प्रेजेंट फॉर बैलेंसिंग बॉडी. इनमें मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए तथा फिन संतुलन के लिए होते हैं. These are cold blooded means their body temperature changes with external environment. ये असमतापी होते हैं. Their heart have only 2 chambers. इनका हृदय द्विकक्षीय होता है. ये जल में अंडे देते हैं. They lay eggs in water. On the basis of skeleton, they are divided into 2 categories. Chondric thighs and ostic thighs. Chondric thighs, those species whose skeleton is made of cartilage. जिनका कंकाल उपास्थि से बना होता है जैसे शार्क. Ostic thighs, the fishes whose skeleton is made of bones. जिनका कंकाल अस्थियों से बना होता है जैसे रोहू and tuna fishes etc. Some common example of cartilage fishes are electric ray, stingray and dogfish. And bony fishes are like rohu, seahorse, flying fish, climbing perch, mandarin fish, angler fish and lionfish etc. Next class है amphibia, जलचर स्थलचर. The word amphibia is taken from Greek words amphi and bios. Amphi means two or both, bios means life. So amphibia means 2 types of life, दोहरा जीवन.
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया के लक्षण। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ये जल तथा स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। स्किन इज स्मूथ एंड विदाउट स्केल्स, स्किन हैज लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स विच कीप द स्किन मॉइस्ट, इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे त्वचा नम रहती है। 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। इन एम्फीबियंस एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू किडनीज, इनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस थ्रू ईदर गिल्स और लंग्स, श्वसन के लिए क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। मीन्स इनमें लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। एम्फीबियंस ले एग्स सो दे आर कॉल्ड ओविपेरस, ये अंडे देने वाले जंतु हैं। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट फॉर रिप्रोडक्शन, इनमें जनन के लिए नर और मादा अलग अलग होते हैं। द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस आर राना टिग्रिना, द कॉमन फ्रॉग, टोड, salamander, hyla also called flying और ट्री फ्रॉग, हाइला जिसे वृक्ष मेंढक भी कहते हैं।